So today we continue with the synthesis of amino acids. So we were discussing how this nitrogen or nitrates, when they are reduced to ammonia, that ammonia, it is utilized for the formation of amino acids. In the last lecture we have discussed about the reductive amination method, catalytic amidation and transamination method. And now we come to the fourth method, that is transformation. Now in this transformation, how one amino acid it gets converted into another type of amino acid, इसमें जैसे कि ऑक्सीडेशन एक ये मेथड है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सी प्रोलीन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोलीन by oxidation, by adding oxygen. So this is the proline, and now after reacting with the oxygen, taking up oxygen, here OH group is added. So you can see by adding this hydroxyl group, it gets converted into the hydroxy proline. So this is how एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होके फिर जो हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है वो बनते जाते हैं. Then the second method, it is by means of reduction. In this case, either oxygen is removed or hydrogens they are added. So you can see this is the aspartic acid. And this aspartic acid, it gets converted into homoserine by the removal of oxygen and addition of the hydrogens. So you can see that this gets converted into the homoserine. Here the change it comes over here. So oxygen एक remove हो गया, hydrogens जो हैं वो add हो गई. So this aspartic acid it gets converted into homoserine. So this is how one amino acid it gets converted into the other during the transformation process. Then another method in which the transformation it can take place, it is condensation. That is, two molecules of one particular amino acid, they condense together to form a third another type of, you can say, amino acid. For example, these two molecules of glycine is again an amino acid. ये दोनों कंडेंस होके एक कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो रिमूव हो जाता है दोनों में से, और जो सेरीन है वो फॉर्म हो जाता है. तो दो मॉलिक्यूल्स किसी एक अमाइनो एसिड के जब कंडेंस होते हैं तो एक और अलग तरह का अमाइनो एसिड वहाँ पे बन जाता है. Glycine, it results in the formation of serine during condensation. Then another method of transformation is cleavage. वहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है कंडेंसेशन में, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और यहाँ पे कोई एक अमाइनो एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, क्लीव होता है टू फॉर्म अनदर अमाइनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल हियर सेरीन जो है, पहले हमने देखा कि दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके सेरीन बनता है. अब एक सेरीन से अगर CH2OH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाए, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन. सो इट विल फॉर्म ग्लाइसिन. So these were the methods by which we can get different types of the amino acid. और इन अमाइनो एसिड्स का क्या फ़ायदा होता है? जो अमाइनो एसिड्स हैं अब वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स की, तो वो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. और वो प्रोटीन जो है, वी नो दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अमोनिया वॉज टॉक्सिक, नाउ व्हाट हैज़ इट रिजल्टेड इनटू? उसके अमाइनो एसिड्स उसने कंबाइन किया ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, अमाइनो एसिड्स बनने शुरू हो गए. अमाइनो एसिड्स दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स. Now another process is the synthesis of amides. Now we have already discussed about the amides earlier also. So these amides ये होती क्या हैं? These are the derivatives of amino acid. ये अमाइनो एसिड की ही डेरिवेटिव्स है जिसमें एक OH ग्रुप जो है उसका COH का, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो ग्रुप. अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि उसका इसको प्रोसेस को हम कहते हैं एमाइडेशन. जो अमाइनो एसिड है अगर वो एक और अमाइनो ग्रुप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमाइड. दैट इज एमाइडेशन. एंड व्हेन इट इज़ नीडेड कि अमाइनो एसिड चाहिए, तो फिर क्या होगा? जो एमाइड है दैट विल रिलीज वन ऑफ इट्स अमाइनो ग्रुप्स and get converted into amino acid again. So that process
reverse process that is termed as deamidation. When an amide, it releases one amino group and gets converted back into the amino acid. If we see what is this direct, how these amides are produced. One method is direct amidation. This method, it takes place in the higher plants, and glutamic acid, only glutamic acid is going to be used in this case. From the glutamic acid, amide will be formed in higher plants. So this is the glutamic acid, the amino acid. It will take up another amino group in the presence of glutamine synthetase, ATP, magnesium ions, and will get converted into glutamine, where it has two amino groups now. तो ये हायर प्लांट्स के अंदर होता है कि ग्लूटामिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू amide, that is glutamine. So this is an amide. So similar enzyme, that is asparagine synthetase, it is present in yeast and lactobacillus aeruginosus. उसके अंदर जो है, इन दोनों के अंदर जो एंजाइम है asparagine synthetase है, it will result in the formation of amide asparagine. But in case of the higher plants, it is the glutamic acid which initiates the process and gets converted into glutamine, that is an amide. Then the second method is transamidation. Now what is transamidation? As the name indicates, एक amide अपना एक amino group दूसरे किसी amino acid को दे दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो amide बन जाएगा. और ये जो amide है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? It will get converted back into amino acid. क्योंकि ग्लूटामिन ही फॉर्म होता है हायर फॉर्म प्लांट्स में, तो ग्लूटामिन से फर्दर जो आगे एमाइड्स बननी है वो ट्रांसएमाइडेशन के प्रोसेस से बनती हैं. फॉर एग्जांपल, in this case glutamine is there, two amino groups it will react with this aspartic acid and transfer one of its amino groups to aspartic acid. Aspartic acid के पास अब दो हो गए, this is glutamic acid. So ग्लूटामिन के पास अब एक रह गया, एक इसने ट्रांसफ़र कर दिया एस्पार्टिक एसिड को. अब ये खुद किस पे कन्वर्ट हो गया? इनटू ग्लूटामिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड के पास अब दो अमाइनो ग्रुप्स हो गए, दो अमाइनो ग्रुप्स. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू amide, that is asparagine. And this reaction, it is with the help of enzyme transamidase. So transfer of amino group from one amide to the other amino acid. किसी और अमाइनो एसिड को वो अपना एक अमाइनो ग्रुप दे देगी, तो ये खुद कन्वर्ट हो गया बैक इनटू अमाइनो एसिड, और जिसको इसने अमाइनो ग्रुप दिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन amide. So this is how different types of amides they are produced. Now we will say जो amides बनती हैं उसका फ़ायदा क्या है. एक फ़ायदा तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज इन एक्सेस ऑफ द कैपेसिटी टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स. सपोज जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में है और जो कैपेसिटी किसी सेल की या प्लांट की है टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स वो कम है. ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर इन शॉर्ट सप्लाई. सो व्हाट विल हैपन? फिर तो अमोनिया इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पर वो नहीं होना चाहिए. तो क्या होगा? अमाइनो एसिड्स now they can take up another molecule of ammonia and they will get converted into amide. तो वो उसको नाइट्रोजन को एक्सेस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एमाइड्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं. और जब अमाइनो एसिड चाहिए होगा, जब कंडीशंस ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स की सप्लाई ठीक है, तो क्या होगा? एमाइड की डीएमिडेशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसका अमाइनो ग्रुप दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड को, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड. Then the second is carbohydrates required to form the keto acids. They are in short supply. अब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड शॉर्ट सप्लाई में है, या कीटो एसिड जिसे हम कहते हैं वो शॉर्ट सप्लाई में है. अब उनकी शॉर्ट सप्लाई की वजह क्या हो सकती है? मे बी द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड्स वो कम मात्रा में है. अगर वो कम है तो नेचुरली कीटो एसिड्स का अमाउंट कम हो जाएगा. कीटो एसिड्स का अमाउंट कम है तो ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूज़ करने के लिए एमाइड्स बनेंगी. देन these amides they are also produced when the proteins they break down.
जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स दे ट्रांसफर देयर अमाइनो ग्रुप टू फॉर्म एसिड्स। अब वो क्या करते हैं अमाइनो एसिड्स, जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन हो रही है तो वो अपना अमाइनो जो एसिड है वो दूसरे दे ट्रांसफर देयर अमाइनो ग्रुप टू अदर अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म एसिड्स देमसेल्व्स। अब वो अगर अमाइनो एसिड ने अपना अमाइनो ग्रुप किसी दूसरे अमाइनो एसिड को दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। सो इट विल फॉर्म एसिड so that from that respiration it can be carried out और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो सके तो वो अपने आप को अवेलेबल करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। और अपना अमाइनो ग्रुप जो है उसने किसी और अमाइनो एसिड को दे दिया, अब वो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमाइड। सो दिस इज व्हाई द एमाइड फॉर्मेशन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अब तक हमारे जो ये 6 लेक्चर्स थे इस पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे, हमने उसमें सभी में क्या देखा कि वी स्टार्टेड विद द नाइट्रोजन, हाउ दैट नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है इन नेचर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स और without the symbiotic association, with the symbiotic association, and then later on after the reduction how ammonia is produced, and then that ammonia it is used up for the formation of amino acids, and amino acids they will result in the formation of proteins. Similarly nitrates जो absorb किए उनकी भी reduction होगी, so these nitrates they are reduced to ammonia. That ammonia is used up in the formation of amino acids, and amino acids in turn they will result in the formation of proteins. So with this we finish with the this chapter of nitrogen metabolism.